Good morning, class. Welcome to today's maths class. Today we are going to start chapter 10. Your chapter 10 is circles. Before I start speaking, you have to tell me what do you mean by a circle. Circle you study since your nursery for second class. And what do we know about the circles? जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपकी classes बढ़ती गई, वहाँ पे नए नए concepts use होते गए. You have to tell me what is circle and what are its parts. Who will tell? Raise the hand, please. Yes, Priyanshu, bolo. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance radius from a fixed point. Yes, right. Sundaram, bolo. आप बोलो. A circle is a collection of all those points in a plane which Yes. are at a constant distance from a fixed point of that plane. Constant distance is length of radius and fixed point is center. ठीक है. Okay. So we are saying collection of all the points which are at equal distance from a fixed point, from a constant point. एक constant point है. इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस वो आपकी मर्जी, आपने क्या लेना है. सपोज आई हैव टेकन द डिस्टेंस टू बी 6 सेंटीमीटर. मैं 6 सेंटीमीटर इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने ले लिया. इधर से इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूर, ये इस तरह से जितने भी आपके पॉइंट्स इससे 6 सेंटीमीटर दूर थे, आपने उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर दिया. राइट. कलेक्ट करते ही जो आपके पास नई फिगर जनरेट होगी, व्हाट विल दैट बी? वो आपका क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम अ सर्कल. आपने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जो फिक्स डिस्टेंस पर थे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. व्हाट इज दिस फिक्स पॉइंट कॉल्ड? Unmute yourself and tell the answer. What is this fixed point called? This is Origin. called? No. Origin. No, no, Center. no. This is Center. called center. जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड व्हाट इज दिस फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड? जो ये Radius. आपने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड रेडियस. Radius. यस. व्हाट इज दिस बाउंड्री कॉल्ड? क्या बोलते हैं इस बाउंड्री को? व्हाट इज दिस बाउंड्री कॉल्ड? Circumference. Circle. This is called circumference. Right? This is called circumference. What else you have done? What is this called? Double of this radius is called Diameter. 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 And what is this called? Chord. Secant. Chord. Chord. अभी जो हमें पता है वो ये secant नहीं है बेटा, ये chord है. Right? Chord है. And अभी आ रहे हैं secant पे भी. Chord has divided the circle into how many parts? Four. Chord has divided the circle into 2 parts. What are these 2 parts called? 4. These 2 parts are Minor called and major chord. Minor and major chord. not chord. Chord तो बेटा ये line है ना chord तो. What is this called? What are these 2 parts called? Minor arc or major arc. हाँ ठीक कह रहे हो. जो अंदर वाला एरिया है that is called segment. और minor arc, major arc, if we talk about the boundary, यहाँ से यहाँ तक ये जो line है, boundary है, this is called major arc. ये आपकी minor arc, ये आपका हो गया segment. This is minor segment and this is major segment, right? The area between the chord and the arc of the circle is called segment. Clear? Minor and major segment according to their area. What else we have studied? अब से पहले वाला बताओ, जिन्होंने 10th में कर लिया है, अपना ये चैप्टर पहले ही कर लिया है, वो मुझे मत बताओ और क्या किया था हमने इस चैप्टर में. If I take 2 radii, what is this formed? Arc. What Arc. is no, arc तो ये वाली है हुई. Arc तो ये बेटा ये वाली है.
व्हाट इज दिस मैम माइनर सेगमेंट। सेगमेंट तो हमारा ये था माइनर सेगमेंट। तो ये क्या है? मैम माइनर सेग मैम मेजर सेगमेंट। सेक्टर। मेजर सेगमेंट बेटा ये मेरी लाइन, इसके ऊपर वाला माइनर सेगमेंट, इसके नीचे वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ मैंने अब एक कॉर्ड की जगह मैंने दो रेडियस ले ली। ठीक है, जब मैंने दो मैम रेडियस थोड़ी ले ली वॉइस और एक, प्रॉब्लम आ रही है। ओके Yes, अभी ma'am. थोड़ा सा करते हैं। यस, ठीक है, Yes, ओके ma'am. नाउ Yes, ma'am. चलिए। अब बता दो, ये जो होता है ना, Yes, जो ma'am. हमारा दो रेडियस है, दो रेडियाए हैं और ये आर्क है। दो रेडियाए और आर्क के जो बीच का एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया ये सेगमेंट होता है, ये सेक्टर होता है। राइट, क्लियर? जहां पर दो रेडियस होनी जरूरी है और एक आर्क होनी जरूरी है, सो उसे आप बोलेंगे सेक्टर। क्लियर? अब एक चीज और बता दो, पहले मुझे ये बता दो सेगमेंट और सेक्टर क्लियर है या नहीं है, तब भी आप अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। Yes, ma'am. Yes, क्लियर ma'am. टू एवरीवन? चलिए, Yes, अब ma'am. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम टेकिंग अ सर्कल, इन द सर्कल आई एम टेकिंग डायमीटर, this diameter has divided the circle into two parts, right? And both the parts are equal, आधा आधा डिवाइड किया है। what is this called, sector या segment? क्या बोलो इसे, सेक्टर Segment. बोलो या सेगमेंट? Segment. Segment. सेगमेंट, श्योर, ऑल आर एग्री विद Yes, सेगमेंट? ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सर्कल है कि आपका सेगमेंट भी होता है और सेक्टर भी होता है। सेगमेंट की कंडीशन है कि एक कॉर्ड होनी चाहिए और एक आर्क होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, राइट? तो हमारा ये सेगमेंट हो गया। सेकंड पे आ रही है मैं सेक्टर पे। द कंडीशन ऑफ द सेक्टर इज, आपके पास टू रेडियाई होनी चाहिए और एक आर्क होनी चाहिए। सो दिस इज द सेंटर, आई हैव टू रेडियाई एंड वन आर्क। तो ये हमारा सेक्टर भी हो गया, हो गया। ठीक है, सो ये हमारा सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है, और इससे बोलते क्या है वैसे हम, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, Semicircle. सेमी सर्कल। half of the circle is called semicircle, right? चले, now coming on the result, last year भी आपने सर्कल चैप्टर किया था, उसमें क्या रिजल्ट किया था आपने? remember somebody, if you are taking a chord, this is the center, right? यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? 90 डिग्री प्लॉट करता है। वो तो मैंने बोल दिया कि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर हाफ इक्वल OA is equals to OB. डिवाइड करता है। यस, Ma'am, half parts में divide हो जाता है. If I take this point as x, in that case I'll be able to say that ax is equal to xb. अगर आप परपेंडिकुलर XB. ड्रॉ करोगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा, राइट? और अगर आप इसके मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हो तो वो परपेंडिकुलर होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स वाइस वर्सा हैं। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो बाइसेक्ट करेगा। उल्टा करके बोल रही हूँ, अगर आपने इसके पॉइंट को, मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? चलो अब आते हैं एक सर्कल और एक लाइन के ऊपर। मैंने बोला कि एक सर्कल ड्रॉ करो और एक लाइन ड्रॉ करो। अब जो लाइन है इस प्लेन में, इस बोर्ड पर, इस प्लेन में जो लाइन है वो हो सकता है इस सर्कल को कट कर दे, हो सकता है वो इस सर्कल को टच होती हुई निकल जाए, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, हो सकता है वो इस सर्कल को कुछ भी ना करे, वो अलग से चली जाए। सो आई कैन ड्रॉ अ सर्कल एंड अ लाइन इन 3 डिफरेंट वेज। एक तो ये कंडीशन, ठीक है, सर्कल ने लाइन के साथ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ओनली वन टचिंग पॉइंट, एंड इफ यू इट मे बी पॉसिबल कि वो लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट मैम अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। अभी भी आ रही है। ऑल आर मैम, no फेसिंग द clear सेम है। प्रॉब्लम। यस मैम। मैम मैम नो clear है. क्लियर है। मैम क्लियर है आपकी वॉइस। Clear है. मैम बीच बीच में आ रहा सुंदरम के है। नेट, सुंदरम भाई तेरा Okay, नेटवर्क oh. प्रॉब्लम है। हाँ तो तू रिचार्ज अच्छा। करवा। नंबर भेज फिर।
व्हाट्सएप करता हूँ। चलिए, this is not the time, मतलब you can listen every each other's voice very clearly. The only problem is with my voice. चलिए, listen here now. You are given a circle. हम कह रहे हैं कि सर्कल के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन मेरी 3 तरह से ड्रॉ हो सकती है। हो सकता है वो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच होती हुई चली जाए, हो सकता है वो लाइन इस सर्कल को कट करती हुई चली जाए। थर्ड कंडीशन है वो हो सकता है ये लाइन अलग से बिना टच होते हुए इसको और पास हो जाए, राइट। यहाँ पर इनके स्पेसिफिक नेम्स है। जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच होती हुई जाएगी दैट विल बी कॉल्ड टेंजेंट, and the line which will intersect the circle at 2 different points that will be called secant। जो अभी सुंदरम ने बताया था, secant ये पूरी लाइन होती है और मैंने कहा था कि यहाँ से ये जो लाइन है ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये secant है, राइट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कॉर्ड हमारी लिमिटेड होती है, इट हैज अ स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, बट secant इज अ लाइन, इट डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट, it do not have any ending point, right? I think I have cleared the doubt. Tangent, secant, this is the chord. It does not have any special name. इसका कोई अलग से नेम नहीं है, right? चलिए, अब आते हैं, अब मुझे एक चीज और बता दें, एक सर्कल है और एक पॉइंट है। We will tell you about the examination as and when it is decided. ठीक है मयंक? We are given a circle and a point. From this point, how many tangents can be drawn? जल्दी बताओ। How many tangents can be drawn from this point to this circle? Yes, we can draw 2 tangents. इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हो। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट नहीं है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस सर्कल? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस सर्कल? आई हैव नॉट गिवन एनी पॉइंट। इन दैट केस टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? सर्कल के ऊपर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट से पास होती हुई आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। बट अगर मैं कह रही हूं कि मुझे एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कितनी हो सकती है? फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। ठीक है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे दैट इज, अगर आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से आप जो टेंजेंट ले रहे हो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारी कहाँ तक काउंट होती है? ये टेंजेंट तो ऐसे है, टेंजेंट तो आपकी बहुत लंबी जा सकती है, बट लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहने का मतलब वो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, राइट। सो दिस पॉइंट जहां पर टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इस टेंजेंट का, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, कट नहीं करेगी, इट विल जस्ट टच द सर्कल एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, राइट। सो यहां से लेकर यहां तक जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक ये इस टेंजेंट की लेंथ है। नाउ द रिजल्ट इज, एक पॉइंट से जब आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा सेम होती है। क्लियर? ये रिजल्ट अब आपने यूज करना है इस एक्सरसाइज में। जहां पर भी आएगा यू विल हैव टू टेल मी कि आपने कौन सा रिजल्ट यूज करना है, राइट। अगेन लिसन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? अगर आप एक सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, देन दिस पॉइंट एट विच they both are meeting, that is called point of contact, right? And you have taken any point outside the circle. From this point we are drawing 2 tangents, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है इनकी लेंथ हमेशा सेम रहती है। एक पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा सेम रहती है। अगर मैं पॉइंट अंदर ले लूं और मेरी ये टेंजेंट जा रही है, इधर से ये टेंजेंट जा रही है, तो यहां से लेकर यहां तक और इसकी ये दोनों सेम होंगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3, अगर ये 7 है तो ये 7 होगी। अंडरस्टूड? ये रिजल्ट अब आपका यूज होगा। और एक और रिजल्ट है,
only on these two results your exercise is based, your chapter is based. Okay, now the result is if you are given a circle, ठीक है, इस सर्कल पर अगर आपने सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाउ? किस किस को नहीं आ रही? I don't think that there is any problem from my side. Are you all able to hear me? Just write down in the chat box. Are you all able to hear me properly? Yes, yes, yes. Only 2 no's, बाकी सारे yes हैं. So बेटा या तो आप एक बारी रिफ्रेश कर लो, दोबारा से एंटर कर लो, एक बारी लीव करके दोबारा से एंटर कर लीजिए. Those who are facing problem. चलिए, if it is clear then let me continue. We are given a circle. इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लिए. Right? Now, if I join this point of contact with the center, right? So उस ये जो point of contact होगा इस point के ऊपर the angle will always be 90 degree. Right? दोबारा से सुनो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस हो गई. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं मींस हमारे पास एक टेंजेंट भी है. दैट मींस वी कैन से दैट द रेडियस एंड टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्लियर? रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. अब आप ये रिजल्ट्स यूज करने वाले हैं. नाउ आई एम allowing you to speak because now you have to give the answers. और अगर किसी की बुक में आंसर्स पहले से ही लिखे हुए हैं, please keep your book closed. You have to give your answers from your side because I have explained everything. Your first question is how many tangents can a circle have? एक circle कितनी tangents हो सकती है? Infinite. Infinite. Very good. Infinite. Infinite tangents can be there from a point. No, Yes, infinite tangents can be to a circle. Now my next question is tangent to a circle intersect it in how many points? Tangent to circle कितने point पर? One. कितने point? One. One. Only 1 point. Tangent and circle intersect. Next is a line intersecting a circle in 2 points is called what? Second. 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 सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करने वाली लाइन you call it secant. Next is Secant. a circle can have dash parallel tangents most. सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा? We are talking about at a time. पैरेलल टेंजेंट आपकी ही हो सकती हैं. Ma'am, ठीक है? अब मैं आपका two. now write your answers. Now you will give your answers in the chat box. Yeah. Okay. My question is, now the question is not from the book. How many pairs of parallel tangents does a circle have? Let me see who will give the answer. How many pairs of parallel tangents can a circle have? अभी तक मेरे पास जितने भी आंसर्स आए हैं वो सारे गलत हैं. ना 2 है ना 1 है. How many pairs of parallel tangents can a circle have? एक सर्कल के ऊपर 0. वेरी गुड. एक सर्कल, इसके ऊपर पैरेलल टेंजेंट्स के कितने पेयर्स हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4. कितने हो सकते हैं आप बता दो? इनफाइनाइट. यस, इनफाइनाइट आपके पेयर्स हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स के. बट आपका क्वेश्चन जो बुक में था वो ये था, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एट मोस्ट? तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एट अ टाइम, राइट? बट कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं पैरेलल टेंजेंट्स के? सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पैरेलल pairs of parallel tangents, right? Now the next question is the common point of a tangent to a circle and the circle. जो point tangent और circle के बीच में common है, that is called
व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसे आप क्या बोलते हैं? यस, गुड। सर्कल एंड टेंजेंट का ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ contact. The common point of the circle and the tangent is called point of contact, right? Now the question is, third question, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. A tangent PQ, ठीक है, इस एक सर्कल और इसके ऊपर आपने ड्रॉ करनी है एक टेंजेंट. आई हैव टेकन अ टेंजेंट, एक साइड से ले रही हूँ मैं. PQ at point P of the circle, सर्कल के ऊपर जो P पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट है PQ. That PQ point will come on this side of radius 5 centimeter. इस सर्कल की जो रेडियस है that is 5 centimeter. Now at a point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter. This is O and they are saying OQ. This is 12 centimeter. And we have to find out the length of PQ. इसकी अपने लेंथ फाइंड आउट करनी है. ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिजल्ट अपने आप से यूज करना है. दैट क्या कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा. अभी बताया है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री. और जैसे ही आपको पता चला कि ये 90 डिग्री एंगल है, आपको ये पता चल गया कि ये ट्राइंगल हमारा राइट ट्राइंगल है. और अगर ये राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाउ विल वी फाइंड आउट द बेस? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? यस, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और क्योंकि आपने बेस फाइंड आउट करना है, सो आई एम राइटिंग बेस स्क्वायर. बेस इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज इज 12 माइनस परपेंडिकुलर इज 5. सो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. गिवन द आंसर रिया, वेरी गुड. 144 माइनस 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 119, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन है. यू had to find out the distance of point Q from the point of contact P. Now this is coming out to be under root 119. Decimals में नहीं बताना बेटा, आपने सिर्फ रूट्स में ही करके छोड़ना है. I think the question is clear to everyone. Now coming to the next question. बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं एक आधा एग्जाम में आ ही जाता है. और इसमें जो मोस्ट कॉमन एरर है वो बता रही हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक. इधर पॉइंट लेंगे, ये ज्वाइन किया, ये सेंटर बनाया, इसको इससे ज्वाइन किया. अब ये लाइन टेढ़ी होने से ये उनको 90 डिग्री एंगल नजर नहीं आ रहा होता. फिर वो 90 डिग्री एंगल या तो यहाँ पहुंच जाता है या फिर वो यहाँ पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है. ये मोस्ट कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं. या तो 90 डिग्री इधर बना देंगे या 90 डिग्री इधर बना देंगे. अगर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट है, तो 90 इन दोनों में से कोई नहीं होगा. ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, 90 से छोटे होंगे. द ओनली 90 डिग्री एंगल विल बी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? चलिए, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज, you just have to draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other a secant to the circle. You have to draw a circle. इस सर्कल के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये कह रहे हैं कि इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक क्या सीकेंट. You have to draw a tangent and a secant and it must be parallel. I hope you have done. Done? Write down done, ma'am, if done. Yes, good. चलिए फिर भी सुन लीजिए. We are drawing a line. इसके आपने पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इसके पैरेलल एक सीकेंट भी ड्रॉ करनी थी. तो सीकेंट आपकी मर्जी है, आप इसमें कहीं भी कोई भी लाइन लगा दो, बट इट मस्ट बी पैरेलल टू दिस लाइन. सो यू कैन टेक दिस लाइन. This is secant and this is tangent.
and both are parallel to the given line. Right? So this was the last question of the exercise. Now we are proceeding to the next exercise. ये आपका जो अब आ रहा है ये आपका 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. जितना जितना आपको स्टेटमेंट पढ़ते जाओ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फिगर ड्रॉ करते जाइए. Length of tangent from a point Q to a circle. From a point Q, the length of the tangent. From a point Q, the length of the tangent. मतलब ये बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है. टेंजेंट कह दिया तो ऑटोमेटिकली सर्कल तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. टू अ सर्कल इज 24. ये कह रहे हैं कि ये 24 सेंटीमीटर है. लेट दिस पॉइंट इज P. Let O is the center, right? And the distance of Q from the center. Q पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस 25 है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. ये हो गई आपकी रेडियस, ठीक है. अब बताओ कैसे करेंगे. रेज द हैंड इफ यू नो और राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी डन इन द क्वेश्चन. हाँ जी प्रियांशु बोलो. प्रियांशु. मैम पाइथागोरस थ्योरम. यस 90 डिग्री कौन सा एंगल है बेटा यहाँ पे. ओपी. एंगल एंगल Okay. OPQ. OPQ. This angle is 90 degree. तो आप इस ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम. ये आपका हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर. अब फटाफट से आंसर भी लिख दीजिए. बिल्कुल ठीक है शिवम. Here OP is equal to under the root hypotenuse square minus base square. So OQ is the hypotenuse minus base is PQ square. So this is equal to under the root 25 square minus 24 square. 25 square is 625 and 24 square is कितना होता है 576. Yes, this is 576, right? Now 625 minus 576 is 94. ठीक है 49 और 49 का रूट आपका कितना आ जाएगा. इट विल कम आउट टू बी 7, राइट. सो वी हैव द रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी 7 सेंटीमीटर, राइट. इस तरह का क्वेश्चन बेटा 1 नंबर या 2 नंबर में आपका मिल जाता है आपका एग्जाम. सिर्फ आपने फिगर जो ड्रॉ की है उसको ध्यान रखना है कि आपने सही मेजरमेंट सही जगह पर लिखी है. यू हैव टेकन 90 डिग्री एंगल करेक्ट. यू हैव रिटन करेक्ट वैल्यूज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर. फिगर आपको गिवन है TP and TQ. These are the two tangents from a point T. This is point T. From this point we are given two tangents. अब before we do this question एक रिजल्ट देख लेते हैं. ये देखो यहाँ पे मुझे ये बता दो आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं. सबसे पहले तो ये बताओ कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. Sum of all 4 angles of the quadrilateral is 360 degree, right? अब इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल्स 90 के हैं वो भी बता दो. Which angles here are 90 degree? है इसमें कोई 90 डिग्री एंगल इस क्वाड्रिलेटरल में? यस P and Q है बेटा. P and Q these two will be 90 डिग्री. अभी तो आपने रिजल्ट किया है कि आपका जो सर्कल है और टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पहले आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर नजर आ रहा था, ये 90 डिग्री बना रहे थे अब तक का. अब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर पहुंच गया. ये जो पॉइंट इधर नजर आ रहा था ये अब ऊपर पहुंच गया, राइट. दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. सिमिलरली एंगल Q ऑल्सो विल बी 90 डिग्री. अब अगर इन चारों एंगल्स का सम 360 है, उसमें से इन दो का तो 180 हो गया. 90 प्लस 90 180. तो बाकी दो का सम कितना रह गया?
what is the sum of angle O and angle T? Yes, Daksh. It will be 180 degree. आपके पास इन चारों एंगल्स का सम P plus Q plus O plus T, this is 360 डिग्री. यहाँ से आपके पास ये दोनों तो 90 90 है, प्लस एंगल O प्लस एंगल T, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. 90 प्लस 90 इसको आप इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा और आपके पास रह गया रिजल्ट एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज 180 डिग्री. तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है. मुझे आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन तो मैं अभी आई ही नहीं हूँ नितिन, मैंने तो अभी क्वेश्चन रीड ही नहीं किया, मैं सिर्फ रिजल्ट बताना चाह रही हूँ आपको. आपके पास ये सर्कल, अगर आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और जो भी सेंटर पे एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 रहेगा. दीज टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री ऑलवेज, राइट. सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका सम है 180, राइट. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे. नाउ योर क्वेश्चन इज, यू आर गिवन टू टेंजेंट CP एंड TQ एंड एंगल POQ. ये आपको गिवन है 110 डिग्री. You have to tell the value of this angle. कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम कितना है? उसमें से ये आपको पता है, इसकी वैल्यू बता दो. Nitin has already given the answer. I am waiting for others to give the answer. Yes, Priyanshu, right? What about others? पीयूष, ठीक है बेटा. Piyush, you are coming daily in the class. PTQ is 70, 70, 70. All are giving the correct answers. इन दोनों का सम अभी हमने बताया है कि 180 है. 180 में से ये 110 है, तो ये हमारा रह जाएगा 180 minus 110, that is 70 degree. Clear? Right? चलिए. Let's come to the next question. We cannot come to the next question because time is going to get over. So I am going to stop here and